Yes, I am audible. Good evening, sir. Yes, good evening. Let me start. Basic introduce yourself. My name is Avantika. I belong to Hisar, Haryana. I have completed my schooling from Holy Angel School, Hisar, and after that, I have done my BSc MSc dual degree course in chemistry honors from Guru Jambheshwar University of Science and Technology, Hisar. Yes. Last day we have discussed chemical kinetics. Which topic? Sir, Lindemann theory, activation energy, activated complex. The Lindman. Last topic is in Lindman. No? Yes, sir. Sir, Lindemann theory and Michaelis-Menten equation, these two topics are left. Lindman, I think is graphical representation is left. No? Yes, sir. Okay. No, sir, graph of deactivation and decomposition was also done. Low and high pressure. Yes, start basic from Lindman theory. Yes. What the main application of Lindman theory in chemical kinetics? Sir, Lindemann theory uses the fact of activating the the energy of one molecule by colliding with another. It when one molecule A collides with another molecule A, it gets energized. So that energized molecule has two possibilities. Either it loses its energy to another molecule and again become de-energized, or the other possibility is that it can convert into product, that is decomposition. And What the that difference between yes. What the difference between Lindman and steady state approximation? Sir, Lindemann theory is for so in case of steady state approximation, if there is any active intermediate that is unstable, so the rate should be determined in terms of stable species. And if there is unstable intermediate, so we have to remove that unstable intermediate to define the rate. So we remove that unstable intermediate by using steady state approximation. According to steady state approximation, the net rate of formation minus net rate of deformation is equal to 0. It considers as the rate of deformation and rate of formation as equal. By using this concept, we remove the unstable species and can get the rate in form of stable species. In Lindemann theory, we use the concept of collision of one molecule to another and get activated by the collision. And in case of Lindemann theory, uh, when we find the rate, we get the rate as rate is equal to K A star. That A star is the unstable intermediate, and to remove that unstable intermediate, we use a steady state approximation in case of Lindemann theory.
At the final product of Lindemann theories, if pressure is high and pressure is low, what will be the effect of the product? Sir, if the pressure is high, then we get the as a reaction as first order, and if the pressure is low, then we get the reaction as a second order. Yes, explain on whiteboard. Slope regarding to rate versus concentration graph representation on board in Lindemann theory. Yes, sir. Sir, if we combine the graph of deactivation and decomposition, then we get the graph at low pressure for deactivation as this linear graph, that is a first order. And when we draw the graph of decomposition, we get the constant graph between rate and concentration. So this is the graph of deactivation, and this is the graph for decomposition. Yes. Rate versus time. Rate versus time. Yes, graph represent on board. So in case of Lindemann theory, Yes. so rate versus time के बीच में तो नहीं देखा था. Rate versus concentration and rate versus time. Is not two types of slope in Lindemann theory. And next one also rate versus concentration, rate versus time. Do you have any idea about rate versus time slope in Lindemann?
Sir, in Lindemann theory, we have got the two order for deactivation and decomposition. That is first order and second order. So we can draw the graph in first order between rate versus time. Mm. So in case of deactivation, we will get exponentially decreasing graph between rate and time. Yes. And in case of Rate versus time. What will the effect in Lindemann theory? sir, the in case of Lindemann theory, the rate in case of deactivation, the rate will शायद रेट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा तो वापस से एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने के लिए Yes, decrease. Any limitation of Lindemann theories in chemical kinetics? Yes. No problem. Yes, next topic. Michelmanson equation, enzyme catalyst. What is Michelmanson? Sir, in Michaelis-Menten equation, we sir, from the Michaelis-Menten equation, we uses the concept of enzyme and substrate. We if the enzymes have if the enzyme has absorbed the substrate, then it has converted into enzyme substrate complex. And after that, the enzyme substrate complex can convert into enzyme and substrate, or it can convert into product. And from the like, if we have a E naught as total enzymes and E as occupied enzymes and E as vacant enzymes, then we have here we have also have two possibilities of deactivation and decomposition. In case of deactivation, we will in case of deactivation, the enzyme substrate
complex will be in equilibrium with enzyme and substrate, and in case of decomposition the enzyme substrate will convert into product and enzyme. And the because in case of decomposition the product is forming, so that is the that is considered as the rate determining step, and we will find rate as rate is equal to k es. फिर स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करके एंजाइम सबस्ट्रेट की वैल्यू निकाल लेंगे और यस Michel mention जो equations है उसका मेन पर्पस क्या है? What the main purpose of Michel mention in chemical kinetics? यस सबकी बताइए आप। स्टेडी स्टेट का क्या है, लिंडमान का क्या है, मिचेल मेंशन का क्या है, क्यों लाया गया इसको? व्हाट द पर्पस ऑफ दिस वन इन केमिकल काइनेटिक्स? सर रेट डिटरमाइन करने के लिए इन केस ऑफ using enzymes यस और ये चेक करने के लिए कि कब सबस्ट्रेट पे रेट डिपेंड है और कब सबस्ट्रेट पे रेट डिपेंड होना बंद हो जाएगा। यस तो मैं बताता हूँ आपको स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का क्यों लाया गया है। इसको इसको इसलिए लाया गया है कि स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से कोई भी हम इक्वेशन को निकालते हैं तो उसको जो इंटरमीडिएट्स है उसका स्लो स्टेप होता है, एक तो स्लो स्टेप्स के लिए यूज किया जाता है, और उसका जो भी कोई भी रेट डिटर्मिनिंग स्टेट होगा वो कोई एग्जिस्ट नहीं करता कोई भी रिएक्शन के लिए। ठीक है, 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट सिंपल। कोई भी सिंपल उसको सिर्फ अ, कम टाइम के लिए कोई भी रिएक्शन को हमें करना है उसके लिए कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन है तो उसका रेट ऑफ डिटर्मिनिंग स्टेप्स है वो एक लॉन्ग टर्म होता है जिसमें इंटरमीडिएट बहुत ज्यादा बनते हैं। कोई भी रिएक्शन से हमें इंटरमीडिएट ज्यादा बनाने हैं, कोई भी रिएक्शन को डिटरमाइन करना है उसके लिए यूज कर सकते हैं, और उसका जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है वो एग्जिस्ट करता है जिसको हम शो कर सकते हैं, है ना। 2 पॉइंट, 1 और 2 पॉइंट इसके हो गए। लिंडमान थ्योरी एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस है जिसमें हम क्या डिफाइन करते हैं, प्रेशर वगैरह कोई भी चीज आइडेंटिफाई करना है हमें उसको यूज कर सकते हैं, टेम्परेचर को यूज कर सकते हैं, और ये कि यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस है। ठीक है, सर प्रेशर के केस में और कोई एसिड की एनर्जी, अगर यस कोई एनर्जी मतलब कोई एक्साइटेशन कोई भी करना है, कोई मॉलिक्यूल्स को एनर्जी प्रोवाइड करानी है उसकी, तो उस तरह के हम रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं, वो लिंडमान थ्योरी में किया जाता है। यस आर यू एनर्जी गेटिंग? डिटरमाइन एनर्जी, यस एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं ना एक्साइटेड स्टेट में, जो भी हम डिटरमाइन यस करते सर हैं एनर्जेटिकल होते हैं ना, उसके जो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं सबसे अलग डिफरेंट होता है ना लिंडमान एनर्जी थ्योरी जिसमें एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, वही चीज को डिटरमाइन करते हैं हम। यस
और मिचिल मेंशन है, उसको क्यों लाया गया है? उसको इसलिए है क्योंकि एंजाइम कैटालिस्ट है कोई भी चीज है, तो वो एंजाइम को इसमें इंक्लूड किया जा सके, उनको उसके साथ डिटरमाइन किया जा सके, आइडेंटिफाई। ये उसका इन सबसे डिफरेंट ये प्रोसेस। कुछ कैटालिस्ट हम निकालते हैं जिनको हम आइडेंटिफाई करते हैं रिएक्शन के अकॉर्डिंग, तो वो एंजाइम कैटालिस्ट के द्वारा निकाले जा सकते हैं। यस, ओके, 1 2 3 4 क्लियर। सर और डिफरेंस नहीं होगा कि यस, एनर्जाइज नहीं हो रहा कोई मॉलिक्यूल और लिंडेमान में energize हो रहा डिफरेंस ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हो गया, एनर्जाइड्स मॉलिक्यूल्स को हम निकालते हैं जिसमें हम कोई एडिशन एनर्जी प्रोवाइड करा दें, एक्स्ट्रा एनर्जी दे दें, ये तो एनर्जी एक्साइटेशन में जाएगा कोई भी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जो भी होगा, ग्राउंड टू एक्साइटेड स्टेट। है। Yes. यस, ये 4 पॉइंट ये हो गए, क्योंकि क्यों लाया, क्यों क्वेश्चन और यही। ये सिंपल क्वेश्चन नहीं होते, डेरिवेशन हो गया, ये प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ये तो सब बुक में मिल जाएंगे। पर्पज क्या है, इसको क्यों लाया गया, क्या है, या वर्क क्या करता है, फंक्शन क्या है, तो ये क्वेश्चन से इंटरव्यू के यही रहते सर लिमिटेशंस। हैं। लिमिटेशन मैंने आपको भेज दी है, जैसे लिमिटेशन बुक्स वगैरह मिलती नहीं है, मैंने लिमिटेशन आपको भेज दिया है ना, जो और भी होंगी वो भी मैं आपको भेज दूंगा, है ना। व्हाट्सएप पे भेजिए सर। यस, जो जिसकी मैंने लिमिटेशंस आपको पूछी थी उनकी सबकी मैं भेज दूंगा। ओके सर। Yes. जो भी आप टॉपिक कर रहे हैं उसका मेन एप्लीकेशन, पर्पज क्या है, क्यों लाया गया है, मतलब पर्पज, और उसके क्या यूजेस हैं, व्हाट द बेनिफिशियल ऑफ दिस वन इन आवर सोसाइटी एंड ह्यूमन बीइंग, और लिमिटेशंस, ये क्वेश्चंस रहते हैं इंटरव्यू के। सिंपल डेरिवेशन ये सर ये प्रॉपर मिलते नहीं है कहीं पे, नहीं मतलब मिलेंगे ना, ऐसे नहीं मिलेंगे, लगभग। किसी के नहीं मिलेंगे। इंटरव्यू में जो क्वेश्चन होते हैं बुक में आप कहीं पे देखोगे ना, पीएसपी के कपूर किसी में लिमिटेशन नहीं मिलेगी। क्वेश्चन इंटरव्यू के क्वेश्चन यही होते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी की बुक्स आप देख लीजिए, आईआर क्या है, एनएमआर क्या है, उनके सोर्सेस क्या है, सोर्स भी नहीं मिलते, लिमिटेशन क्या है, उनके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, तो ये बुक्स ये मिलते हैं रिसर्च पेपर में, रिसर्च पेपर आप सर्च करोगे वहां पे मिलेंगे। कोई डीपली कोई स्टडी नहीं करता। इंटरव्यू का पर्पज क्या है, इंटरव्यू का पर्पज यही है ना, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होगी, कुछ डिफरेंट आप करेंगे तभी तो सिलेक्ट होंगे, साइंटिस्ट बनेंगे ना। सब जो सारी चीजें सेम करेंगे लोग, थ्योरी पढ़ लिया और डेफिनेशन दे दी, तो उससे थोड़ी सिलेक्शन होता है कोई, नेट गेट का एग्जाम तो है नहीं। यस, ये बेसिक हो गया हमारा पॉइंट। अब इसी में ही हम एंजाइम कैटालिस्ट के जैसे एंजाइम कैटालिस्ट का फाइनल प्रोडक्ट जो आएगा उसके अकॉर्डिंग, जैसे केएम ग्रेटर देन सबस्ट्रेट है, वो केएम लेस देन सबस्ट्रेट है, वो केएम इक्वल सबस्ट्रेट है, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट एंड व्हाट विल द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सर रिपीट करना क्वेश्चन। एंजाइम कैटालिस्ट फाइनल प्रोडक्ट आएगा मिकेल मेंसन इक्वेशन, केएम, ये केएम ग्रेटर देन सबस्ट्रेट होगा तो क्या ऑर्डर आएगा, प्रोडक्ट क्या आएगा, केएम लेस देन सबस्ट्रेट होगा तो प्रोडक्ट क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, और केएम इक्वल होगा तो प्रोडक्ट क्या आएगा और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा। इसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए, रेट वर्सेस सबस्ट्रेट और कंसंट्रेशन वर्सेस सबस्ट्रेट, टू टाइप्स ऑफ स्लोप ग्राफ। सर इक्वेशन। सर जब सबस्ट्रेट कम होगा सब केएम से,
तो आर मैक्स एस अपॉन के एम इक्वेशन आएगी। तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे सी 0 हो जाएगा। और अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें जैसे माइकलिस मेंटन प्लॉट में रेट वर्सेस सबस्ट्रेट, तो जो स्लोप है वो आर मैक्स अपॉन के एम आ जाएगा। और हमें रेट वर्सेस सबस्ट्रेट के बीच में लीनियर ग्राफ मिलेगा विद स्लोप आर मैक्स अपॉन के एम। This was the case when substrate concentration was very low than this Michaelis constant, that is Km. और अगर सबस्ट्रेट को ज्यादा अगर सबस्ट्रेट ज्यादा है तो हमें यहाँ से सबस्ट्रेट कैंसिल होके आर मैक्स रेट आर मैक्स के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट पे रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा, जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हमने काफी ज्यादा ले ली। तो यहाँ से हमें रेट वर्सेस सबस्ट्रेट के बीच में कांस्टेंट ग्राफ मिलेगा। और अगर हम दोनों ग्राफ को कंबाइन करें तो पहले जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम थी Km से, तो हमारे पास लीनियर ग्राफ ऑब्टेन हो रहा था रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच में, दैट वाज फर्स्ट ऑर्डर। और जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो इंडिपेंडेंट हो रहा था सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से, तो दैट वाज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। Yes. This will be the graph between rate and substrate. इसकी कोई लिमिटेशन है? एनी लिमिटेशन ऑफ इंक्रीमेंशन? कोई नहीं, मैंने आपको भेज दिया है। यस, लिमिटेशन है, पूरी अप्रोक्सीमेशन उन सबकी मैंने आपको भेज दी है। फिर नेक्स्ट, जैसे हाउ टू डिटरमाइन बी मैक्स वैल्यू फ्रॉम इंक्रीमेंशन इक्वेशन। बी मैक्स कैसे निकालते हैं? सर जो रे इक्वेशन आई थी रेट इज इक्वल टू आर मैक्स एस अपॉन एच प्लस के एम, वहीं हम आर मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। आर मैक्स और वी मैक्स। यस,
एंजाइम कैटलिस्ट में यूज किया जाता है वीमैक्स के एकुलिन लाइन वियर वर्क मेथड। लाइन वियर क्या होता है ये? सर लाइन वीवर ने अपना लाइन वीवर ने अपना एक माइकलिस मेंटेन इक्वेशन से ही एक प्लॉट दिया था, लाइन वीवर बर्क प्लॉट। उसमें एक ग्राफ, जैसे माइकलिस मेंटेन प्लॉट में हम रेट वर्सेस सबस्ट्रेट के बीच में ग्राफ बनाते हैं, और लाइन वीवर बर्क प्लॉट में हम 1/r वर्सेस 1/ सबस्ट्रेट के बीच में ग्राफ बनाते हैं। वहां से हम आर मैक्स की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे इंटरसेप्ट आता है 1/r मैक्स। यस, लाइन विवर में जो हम निकालेंगे रेट वर्सेस सबस्ट्रेट कैसा ग्राफ आएगा? हाँ, चलो। इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा विद इंटरसेप्ट। यस, लाइन वीवर की कोई डिसएडवांटेज लिमिटेशन है, कुछ आइडिया है? सर एट डिसएडवांटेज लिमिटेशंस वगैरह देखिए। यस, कर लेना, मैंने आपको भेज दिया है। ओके सर। नेक्स्ट मूव ऑन, नेक्स्ट टॉपिक इज कोलिजन थ्योरी। व्हाट इज कोलिजन थ्योरी? व्हाट द मेन एप्लीकेशन ऑफ कोलिजन थ्योरी इन केमिकल काइनेटिक्स? सर in case of collision theory, we for there are some postulates for collision of molecules. If the if one chemic if any chemical reaction converts into product, then the collisions between the reactant molecule should be in proper orientation, and the energy of the colliding molecules should be nearly similar, and proper orientation, similar energy, and उनकी उनके पास पूरी एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए उतनी कि वो कन्वर्ट हो सके प्रोडक्ट में। यस, who was developed by collision theory? Arrhenius and Van Top. Yes, Arrhenius and Van यस Top. सर, आर यस सर। What the relation between collision theory and Arrhenius and Van Top? Explain. सर आर्हीनियस वांट ऑफ इक्वेशन को यूज करके हमने इसमें आर्हीनियस और सर वांट ऑफ इक्वेशन को यूज करके हमने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी में यूज करा था, और फिर उन आर्हीनियस इक्वेशन और वांट ऑफ दोनों को यूज किया था कोलिजन थ्योरी में। कुछ फॉर्मूला है? एनी फॉर्मूला ऑफ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ collision theories?
सर दो कंडीशंस हो सकती हैं। अगर सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉलिजन हो रहा है तो कॉलिजन रेट 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर म्यू बार Na स्टार स्क्वायर से दिया जाता है। और अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं तो फिर वहां पे NaNb हो जाएगा। और अगर सेम मॉलिक्यूल्स हैं तो हम वहां पे कोलिजन डायमीटर निकालने के लिए जब वो कोलिजन डायमीटर निकालते हैं तो वो उसको सिग्मा एक के बराबर आता है, जो जो मॉलिक्यूल ए का डायमीटर है। और जब जब हम दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं तो उस केस में सिग्मा ए प्लस सिग्मा 2 हो जाता है। और यहाँ पे Na स्टार को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। एंड म्यू बार इज average speed, which is given by under root kbt by pi m. यस, एनी लिमिटेशन ऑफ कॉलिजन थ्योरी? कोई नहीं। सर लिमिटेशन इसकी ये थी कि अगर हम मतलब इसमें एक्चुअल रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा जाती है एक्चुअल रेट कांस्टेंट से। और इसने टेम्परेचर को कंसीडर नहीं किया था। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इन्हीं लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए दो फैक्टर्स लाए थे, एक्टिवेशन एनर्जी और स्टेरिक फैक्टर दैट वाज पी। यस, स्टेरिक फैक्टर। क्या होता है स्टेरिक फैक्टर? सर जिस तरह से मॉलिक्यूल इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उससे फर्क पड़ता है। तो फिर अगर स्टेरिक हिंड्रेंस होएगी तो उस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जो कोलिजन्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको कंसीडर नहीं किया था कोलिजन थ्योरी में। जैसे अगर दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं तो लीनियर कोलिजन भी हो सकता है उनके बीच में। और जिसकी वजह से लीनियर ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगी। और अगर यस यस, गुड। अलग अदरवाइज बैंड ट्रांजिशन स्टेट भी आ सकती है। यस, गुड। अब कोलिजन थ्योरी को थोड़ा वंस अगेन अच्छी तरह से करना, कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोलिजन थ्योरी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, these are the topic of left in chemical kinetics, and salt effect also.